आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग। सबने टेस्ट दिया था आज? यस सर। ओके। अरिंदम ने तो काफी क्वेश्चन बताया गलत है। हमने कहा अच्छा सर एक्चुअली दो तीन, हाँ सर 3-4 क्वेश्चन सर उसमें थोड़ा रॉन्ग है। वो मतलब वापस सर वो पहले वाला जैसा ही आ रहा है। उसमें वो जो ऑप्शन दिया था ना, जो क्लिक कर रहे हैं हम मतलब वो गलत बता रहा है सर उसमें। करेक्ट ऑप्शन। हाँ चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। अभी पहले तो सब देखो, सबने दिया है कि नहीं, तभी मैं डिस्कस करूंगा। होता ये है कि जब मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी पेन कहाँ जली है यार? ये थैंक गॉड। नीट सॉरी नेट का एग्जाम हो गया नवंबर में? कौन कौन दे रहा है इस बार? सर मैं देता हूँ। प्रीति भी दे रही होगी। निरीक्षिका ने भरा है? निरीक्षिका ने भरा नहीं है ना? निरीक्षिका ने भरा नहीं है फॉर्म, मुझे पता है। No, I filled. Yes sir, I applied. Okay, okay. Okay, then it's very good because now you know this was extension from June. So anyone started late preparation, that will also be in fight. That is the very good part. And who were in the fight in the June, now they will be fighting in the next June because they are going to forget everything. Right? So fresher are more aggressive than older one. So let us see what is the actual result of test today. Sir, I didn't send the test. I didn't get any notification of uploaded test, sir. Why? I don't know. Just now I'm checking. I was waiting since the morning, but I didn't get any notification, so I didn't attend. Okay, no problem. No problem. Then, sir, you discuss the question. After that, I will join, sir. I will attend the test now, otherwise. But there is a limited time, na? You know? There is a very limited time. You have to finish it. What is happening? So everyone attended an intellectual property live webinar. That is this is the recording of session. Chalo. This was a basic problem. Disha joined finally. Okay, Disha. Have you attempted that test? No, sir, I didn't. Only 4 people: Sapna, Gurpreet, Preeti, Arindam. So what we can say? Gurpreet was highest. So let us see Gurpreet first. Gurpreet is there. Follow this strategy. As soon as the test is uploaded, accuracy score, see the accuracy score 82%. So you don't need any preparation except a very active revision only, right? Incorrect answer you can see only 8. You know? And I think that was also in confusion. Now you can see this is the actual
required for the selection of DRF. Accuracy score must be very high. That is the special feature of this software. Now, Arindam, Yes, sir. let us see what question you have reported. The question was, there was a question. Okay. I have to type your name. Ah. 4, 12, 13, 23, right? 4 देखो क्या है, सिलियन फ्लैजेला, कैसे कंफ्यूजन हो गया आपको? Yes, sir. Microtubules है सर इसका आंसर. नेगेटिव आंसर है, Yes, sir. माइक्रोफिलामेंट है। microtubules होना चाहिए. अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल ही है, माइक्रोट्यूब्यूल ही है, सिलियन फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल लिखा भी एक्सप्लेनेशन में। उसके अंदर सर माइक्रोफिलामेंट नहीं है सिलियन फ्लैजेला। राइट राइट। हैं, shall I join after the discussion? मतलब what you will do? Sir, after this question, sir, I will attend the test later. I don't know if you are what you I don't know what you should take your decision. Which of the following are found only in animal cells? So, Yes, sir. any confusion in this? Animal cell में क्या पाया जाता है? Intermediate filament, microtubule, nucleus, microfilament. Microtubules. Microtubule ही सही है, ठीक है। 6 तुम्हारा 12th ना, ये देखो ये GRE का क्वेश्चन है एंड होपफुली मुझे लगता है ये आना चाहिए किसी भी एग्जाम में। द ऑप्शन वाज ए। यस, ठीक है, गलत मारा, अच्छा है ना। Dipolar filament sorry, forming protein that bind to hydrolyzed AGTP, major cytosol protein macrovilli filopedia, है ना, ये तो बताया ही था। कैल्शियम बाइंडिंग स्विच प्रोटीन क्या होता है? कैलमाटोनिन, राइट। कैल्शियम का नाम आ गया, 132 का ही है। अच्छा, ट्रोपोनिन भी है, स्केलेटल मसल फाइबर है ना, दैट इज ट्रोपोनिन। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। दिस वाज मैचिंग टाइप क्वेश्चन, है ना, you have to match. 7 में fluorescent tubulin is micro injected into cytoplasm of mammalian cell in interphase. The following based describe. Fluorescent tubulin will first be incorporated. सबसे पहला कहाँ पे incorporation? At the distal tip. At the distal tip. At the distal tip, third. Throughout the length of the distal mechanism. थर्ड ही है वो, डी। हाँ, डिस्टल टिप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 7 7 7 8 छोड़ दिया इसने। टिटनेस टॉक्सिन, ये तो बताया था। टिटनेस टॉक्सिन इज टेकन अप बाय सेप्टिमेरियन। ए का आंसर। हाँ, इंजेक्टिंग द न्यूरॉन विद आर्नेट डायरेक्टली। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिट्रोगेट करेगा सर वो डायनिन। हाँ, इसको मुझसे याद रखो। न्यूरॉन माइक्रोट्यूब्यूल डिकोलोनाइजिंग ड्रग ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको सब लोग अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि नवंबर में एग्जाम आ गया, अब एकदम सिर पे है सारी चीजें। निरितिका भाग गई ये दुर्गा हैव यू अटेम्प्टेड दिस टेस्ट? Treating neuron microdevelopment development is also likely to block the support. Yes. Let's see left. 8th question. Injecting neuron directly. And then 9th. ये भी मैचिंग वाले। Refer to the following stage of the cell cycle: interphase, prophase, metaphase, anaphase, cytokinesis. ये थोड़ा सा बताया था इधर, है ना।
Cantochore appeared and passes macrotubule of equal length, actin interaction with myosin essential. Macrotubule depolymerization. Okay. Very important. Which is referred to the following stages of cell cycle. ठीक है, this is the 9th. The most likely explanation for the effect of cyclohexamide on flagellar assembly in the cilia is that most likely explanation is cyclohexamide in flagellar assembly. फ्लैजेला की जब असेंबली होती है, then what is the role of cyclohexamide? ये पूछा है ना, so that it is prevent assembly tubulin for outer double formation, prevent synthesis of carbohydrate that are part of elongating flagellar membrane, prevent synthesis. तुम लोगों ने क्या लगाया? C. अच्छा लगाया ही नहीं. Prevent synthesis of protein that is presented in a quantity sufficient to sustain assembly of flagella to half of the normal length. ये अच्छे से बिल्कुल दिमाग में रख लो. इसमें पूछा गया है inhibitor are using for the before the flagellar assembly, right? So inhibitor will prevent the synthesis of protein, right? Vmax वाला concept है जो एंजाइम के नहीं बताता, lag log and है ना, समझ रहे हो? अरिंदम वो बताया था ना, lag log वाला कॉन्सेप्ट याद है? हाँ सर, वही वाला इसमें पूछ रहा है. अरे ओके, सो ये पूछ रहा है लैग लॉग एंड स्टीडी, ये पूछ रहा है. ठीक है, चलो बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, अभी तक कहीं नहीं पूछा है. प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोफिलामेंट इज नोन, ये तो बहुत ही सिंपल था 11 है ना. माइक्रोफिलामेंट में कौन सा होता है? दोनों होते हैं, एफेक्टिन है एक्टिन है ना. जी बोथ इज करेक्ट, एफेक्टिन एक्टिन. ठीक है, 12th में तुमका एक प्रॉब्लम है, which of the following apply to cyto, please select all that apply. इसमें more than one option वाले करेक्ट थे ना. डी. यस सर, इसके अंदर यही समझ नहीं आया. हाँ, which of the following apply to cytoskeleton, please select all that apply. नीचे से पढ़ना हमने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो कंफ्यूजिंग हो, सबसे बॉटम से पढ़ना सिलेक्ट करो, क्योंकि ज्यादातर नहीं सर, ऑप्शन तो सारे सही है, इसके ऑप्शन तो सारे सही थे सर, बट इसका आंसर कहाँ पे टिक करे सर, ये समझ नहीं आया. इसका ऑप्शंस आप देखोगे सर, 1 इज करेक्ट, 2nd इज करेक्ट. चलो ठीक है, सारा पढ़ लेते हैं. इट्स अ प्रोटीन कंपोनेंट हैज बीन हाईली कंजर्व्ड थ्रू आउट इवोल्यूशन, राइट? ओके, सही है. इट कंसिस्ट इन पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. सही तो सारे हैं, बट पार्ट ऑफ, ये कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग अप्लाई टू साइटोस्केलेटन, मतलब जो फुल्ली अच्छे तरीके से सही हो, जो सब में अप्लाई हो साइटोस्केलेटन की, उसकी बात करो. तो सब में जो अप्लाई हो रहा है वो ये है नीचे वाला डी, कंसिस्टिंग पार्ट ऑफ नेटवर्क फाइब्रस प्रोटीन. वो कुछ क्लियर नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है. इट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन सिस्टम. ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि किसके बारे में कर रहा है, फाइब्रस प्रोटीन सिस्टम है ना, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल तो ऐसा तो नहीं फाइब्रस है ना. 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन फाइब्रस वर्ड जोड़ के उसने गलत कर दिया उसको. प्रोटीन भाई कह रहे हैं फाइब्रस वो गलत वर्ड है ना, उसने ऐसे खेल किया है ताकि आपको लगे कि सही है, बट सही नहीं है, फाइब्रस नहीं है. ये एकदम कम्प्लीटली सही है. नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, वो भी फाइब्रस ही बात की जा रहा था, तो दोनों ही फाइब्रस खत्म हो गए. Each occupies a general nucleoplasm well as occurring in the cytosol. ठीक है. So
ईच ऑक्युपाइज, अगर ईच ऑक्युपाइज की बात करो तो साइटोस्केलेटन में 3 है, या तो तीनों न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑक्युपाई हो या तो तीनों साइटोसोल में हो, है ना। अगर आप बिना नाम की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हम किसको बोलेंगे कि ये इसको कहना चाहिए, बात समझे। अगर मैं आधी आधी बात कर रहा हूं तो ये क्लियर नहीं हो रहा ना कि किसके बारे में कह रहे हैं। समझे बाबू बात? हेलो, ठीक है सर। आप समझ गए? इससे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं जिसमें ब्रेन आपको खुलता है, यू आर चैलेंज बाई सर्टेन ऑप्शंस, कि आपका सोचने का तरीका क्या है, ये वो वाले क्वेश्चन है। दे आर हैविंग नो इंफॉर्मेशन except very few information and they are checking that what do you think about that. तो आपको डिसीजन लेना है ना, डिसीजन लेना है, डिसीजन एज ए साइंटिस्ट आप कैसे लोगे इतना बड़ा डिसीजन, और गलत डिसीजन तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, कंजर्वेशन जो बिल्कुल सही है वो यही है कि हमने बताया भी था, कई बार बताया एक्सप्लेन करके, ठीक है भाई, वही चीज से बाकी चीजें है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर, ऑल्सो अकरिंग इन साइटोसोल। तो किसके बारे में कह रहा है, कौन सा न्यूक्लियोप्लाज्म, कौन सा साइटोसोल, ये नहीं क्लियर है ना। ईच ऑक्युपाइज, ईच सारे हो गए ना ईच में। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, क्लियरिटी मांग रहा है, प्लीज सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो सेलेक्ट किसको करेंगे, है ना, सो थोड़ी करेंगे, ठीक है। 12 एकदम सही क्वेश्चन था। साइक्लो, ये तो पढ़ाया था, साइटोकैलेसिन डी inhibit the formation of microfilament which among the following biological activity will be hindered. कौन सा नहीं होगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, साइटोसोलिक ट्रांसफर ऑफ वेसिकल नहीं होगा, अमीबाइड मूवमेंट ऑफ फाइब्रोसिटिक सेल नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो फॉलोइंग टेलोफेज माइटोसिस नहीं होगा। पहले तो ये देखो माइक्रोफिलामेंट पाया कहाँ जाता है, क्या ये डिवाइडिंग सेल में होता है, यस और नो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल बी हिंडर्ड, कौन से नहीं होगा अगर ये इनहिबिटर दे दे तो। माइक्रोफिलामेंट से रिलेटेड कौन कौन से हैं, एमएफ, एमटी, ये बताया ना, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, और थर्ड वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, यही था ना। फिर कितनी गर्मी है, सारे लोग एसी पड़ा एसी चला पढ़ाते हैं। इसका आंसर भी सर आई थिंक ए सी एंड डी होना चाहिए सर, मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है। सी एंड डी लिखा ना, नहीं ए सी एंड डी, अच्छा दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए सी डी है, ए सी डी सर तीनों ऑप्शन सही है, नहीं ऑप्शन सही है सर, ए सी डी सही है, ए सी डी, हाँ सी डी नहीं, हाँ। वो सी डी गलती से लिख लिया है, ए सी डी आंसर है ही है। अरे तो सारे जो आंसर हैं सारे सारे आंसर है, बी को छोड़ के, बी को छोड़ के, हाँ हाँ, तो ए सी डी लगाओ ना, जो जिसमें इकट्ठे दिए हुए सारे, एक ऑप्शन है ना, मल्टीपल वाले है नहीं ना, वो हमारे से गलती से हो सर गया है। मल्टीपल वाला क्वेश्चन था, मल्टीपल ही तो लगाया, तभी तो 2 आंसर सही हुए, तीसरा गलत कर दिया उसने। अरे मैं कह रहा हूँ ए सी डी है बस, वो आते नहीं ऐसे SIR में, ए बी सही, बी सी डी सही, ऐसे नहीं आते हैं, वैसा है, ये गलती से लग गया सी एन डी। जब तक ये साथ में नहीं होगा तब तक वो सही नहीं है, ठीक है, या तो ए बी रहता, पेयर में रहते तब वो सही होता है, इसमें अब सी एन डी नहीं था तब सही होता है ये डी वाला, अभी डी वाला ही सही है, थर्ड वाला नहीं सही है, लिखा भी है सोल्यूशन में, देखो ना, एक्सप्लेनेशन डी, से B is not happening, cytosolic transport of vesicle, microfilament is not related with that, हाँ that is inhibited, है ना, cytosolic inhibit following
biological activity. So because they are inhibiting microfilament muscle contraction, amoebic movement of phagocytic cell, and formation of cleavage furrow following deprivation of muscle. These three activities are going to be blocked. 14. Which of the following cytoskeletal protein have an almost all helical secondary structure? Please select all that apply. Which of the following cytoskeletal protein have an almost all helical secondary structure? Please select all that apply. किसका secondary structure की तरह होता है? ये डिस्कस किया था क्लास में. ट्यूबुलिन, केराटिन, लैमिन, एक्टिन, है ना? सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका होगा? किसमें अल्फा बीटा होगा? ये पूछ रहा है. ट्यूबुलिन होता है अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन. केराटिन में होता है अल्फा केराटिन होता है. लैमिन्स एक्टिन होता है अल्फा एक्टिन, जी एक्टिन होता है, एफ एक्टिन, जी एक्टिन. लैमिन्स, बी एंड सी इज करेक्ट. लैमिन्स नहीं होता है कि होता है? ऑलमोस्ट ऑल हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा बीटा सारे होते हैं. केराटिन, लैमिन्स, अल्फा बीटा केराटिन होता है. अल्फा केराटिन तो नहीं सुना था, है ना? ट्यूबुलिन में भी कौन कौन से ट्यूबुलिन होते हैं? अल्फा बीटा ऑल. प्लीज सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. केराटिन एंड लैमिन्स. लैमिन्स का कौन सा स्ट्रक्चर? अल्फा लैमिन्स होते हैं, गामा लैमिन्स होते हैं. अल्फा बीटा के बारे में ही बात कर रहे हैं. इवन ऑलमोस्ट ऑल हेलिकल. इसका देखना पड़ेगा कि लैमिन्स का जरा कंफर्म करो. लैमिन्स में और केराटिन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ट्यूबुलिन में तो अल्फा बीटा होता है. नहीं सर, इसका आंसर है सर, मैंने सही किया है. इसका आंसर है सर, और केराटिन आंसर है इसका सर. केराटिन. यस सर, केराटिन एंड लेमिन सर. लेमिन, हाँ. अच्छा, तुम श्योर हो ना? ये ठीक है. यस सर, आई एम श्योर. ठीक है. इसने ग्रुप में भी सही किया. 15. Which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है भाई? ऑल मिनिमाइसिन मूव कार्गो along microtubule toward their negative ends. Kinesin move cargo along the microtubule towards its negative end. Dynein move cargo along the microtubule towards its positive end. Kinesin and dynein move cargo along the microtubule towards positive and negative ends. हाँ, कौन सा सही है? फोर्थ करेक्ट है सर. Kinesin dynein move cargo along microtubule towards positive and negative ends. हाँ, but kinesin positive, dynein negative. Yes. Kinesin and dynein move cargo along positive. Yes. Very good. बहुत अच्छा. हमारे बच्चे जीनियस हैं, मजाक थोड़ी है. बताओ कितने अभागे लोग हैं? मैंने करीब 100 लोगों को इनविटेशन भेजा था IPR में कि तुम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने हैं. एंड ना ज्वाइन. नेक्स्ट टाइम से अब कंपलसरी मतलब रखेंगे पैसा वाला. व्हाट यू से ना, अपने स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सारे के लिए पैसा कंपलसरी करोगे. देन यू विल सी एवरीवन इज गोइंग टू ज्वाइन. जो रजिस्टर करेगा, ऐसे फालतू में रजिस्टर कर लेते हैं विद रॉन्ग मेल ID एंड रॉन्ग फोन नंबर. दैट्स व्हाई द लाइफ साइंसेस फील्ड इज बर्बाद ना. बट दिस फील्ड इज फुल ऑफ नॉनसेंस. दे डोंट बॉदर फॉर एनीथिंग. देन व्हाई कैरियर विल बी योर्स, है ना? एक बंदा पेटेंट अटॉर्नी ऑफ इंडिया वो टाइम निकालता है, ठीक है, 1 घंटे देने का वो 20,000 चार्ज करता है. उसने हमारे लिए फ्री निकाला टाइम. एंड द नॉनसेंस वी आर नॉट बॉदर टू ज्वाइन एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स की देखें क्या हो रहा है. समथिंग यूजफुल. सर 1 घंटे का 20,000. 1 घंटे 20,000. उसका 6 लाख रुपए फीस है इंटरनेशनल पेटेंट का, 60,000 फीस है उसका इंडियन पेटेंट का.
अभी इसको मैंने 30,000 पे किया है, एक पेटेंट मेरा फाइल हो गया है, ठीक है, और उसने बंदे ने टाइम निकाला, सोचो। और इन गधों को जिसकी कैरियर की वाट लगी पड़ी है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, they have such a ego that I will not join the free conference. नेक्स्ट टाइम से भले 50 रुपया ही रखूंगा एंट्री टिकट, लेकिन रखूंगा। मैंने मतलब बहुत ही गुस्सा आया मुझे। एक मैं प्रोफेसर रैंक का, एक तो मैं 10 बार मेल आईडी भेज रहा हूँ। नो वन बॉदर टू चेक इवन मेल आईडी, सच ए नॉनसेंस। दैट्स व्हाई इंडिया इज बर्बाद कंट्री, एवरीवन इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ओनली। सब चाहते हैं उनका काम हो जाए, मतलब नेट निकालना एक काम हो जाए, नॉट सीरियस अबाउट दिस प्रोफेशन। कहाँ से गधों का जो है फौज फिर सेलेक्ट होगा, वेरी डिफिकल्ट। तुम लोग क्या लगता है, पे करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम फ्री रखना चाहिए? फ्री से तो देख लिया हमने करके, व्हाई वी शुड डू इट फ्री? फ्री फॉर ओनली अवर स्टूडेंट। आप लोगों ने भी कम हार्ड वर्क किया, क्योंकि दिन रात लगी रही, इधर नोटिफिकेशन भेजा, उधर भेजा, है ना, ऑल दे मेकिंग द जोक्स। ये इंडिया में डिजर्व उसी के लोग करते हैं जिसका पेमेंट करते हैं। फ्री में दे दो कुछ भी ना, तो बंदर की तरह है, नोच के खा जाएंगे। पहले मैं फ्री क्लासेस देता था, जब स्टार्टिंग में 2 साल पहले स्टार्ट किया था। ऑल दे वर मेकिंग जोक्स, देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। ये नॉनसेंस नॉनसेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 हो गया, 17 तुम कह रहे थे, 18 कह रहे थे। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मुझे बहुत पसंद आया। तुम लोगों ने किया भी है, अच्छा, गुरप्रीत ने सॉल्व कर दिया इसको करेक्टली, वेरी गुड। Population of cell-grown adherent culture contain 0.44 mg protein per 10 power 6 cells. Actin comprise 4.5% of total protein. Given that MR of actin is 42,000 and Avogadro number is 6.2 into 10 power 23. अभी सिर्फ 2 मिनट रह गए। Which of the following equals the mean number of actin molecule per cells? इसको बड़ा सिंपल ही करना था ना, अगर 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है, और उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना, परसेंटेज दिया हुआ परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना था अगर 2 नंबर से, ठीक है, समझ गए? पूछा ही हुआ है, फॉलोइंग इक्वल द मीन नंबर ऑफ, नंबर पूछा है। अगर 2 नंबर से नंबर कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट भी तो दिया है, 4.4% दिया हुआ है, 4.5%, एंड ये वेट भी दिया है ना? मोल कैसे निकालते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मोल निकल गया, मोल में अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल पर सेल आपको निकला है। क्लियर? बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया, दुखी हो गए किस बात से? ठीक है, बस समझ गया। माइक सारे ओपन कर लो, कुछ हाँ ना करते रहा करो। Yes, sir. अभी लग रहा है कोई बोला है। Which of the following is true regarding microfilaments? माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में क्या सही है? स्मॉलेस्ट है, नो। 9+2 है, नो। ठीक है सही भाई, स्मॉलेस्ट ही है, 9+2 नहीं है सर। इसमें हाँ, more than one of these are true, these are made up of myosin Yes, sir. and actin. हाँ, सर थर्ड आंसर है सर, इसका थर्ड आंसर होना चाहिए सर इसका। 9+2 वाला नहीं सर, इसका ये जो 18 क्वेश्चन का आंसर थर्ड है ना, बोथ मोर देन वन ऑफ दीस आर ट्रू। 9+2 भी सर है। देखा जाए तो साइड, हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है सर। नहीं सर, नहीं सर, आई थिंक मायोसिन नहीं होता माइक्रोफिलामेंट, आई एम रॉन्ग। हाँ सर, सही है भाई, फर्स्ट है सर, स्मॉलेस्ट है। माइक्रोफिलामेंट पूछ रहा था वो। हाँ मायोसिन नहीं होता आंसर। गुरप्रीत का देख लो, सही मारा है उसने। हाँ सर सही। मजाक है, गुरप्रीत है पंजाब की शेरनी।
कल पता नहीं क्या इसका व्हाट्सएप स्टेटस भी शेयर जैसे लगाया था, मैं पहचान ही नहीं पाया। हमने कहा आदमी बैठा है कि शेयर बैठा है। जस्ट जोकिंग, डोंट वरी। इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस द साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व, इसमें साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व है। कल क्या गजब प्रेजेंटेशन दिया था गुरप्रीत ने, जबरदस्त है ना अरिंदम? डू यू एग्री? प्रीति तुमने टेस्ट नहीं दिया? हेलो दिशा, आवाज आ रही है? आपने टेस्ट नहीं दिया बेटा? नहीं क्यों? सर मैंने पढ़ा नहीं था पीछे का भी सारा। अरे 2 पेज तो पढ़ना और कल घर पे गेस्ट आ गए थे, कल घर पे गेस्ट आ गए थे तो मैं सुबह से पढ़ रही थी पुराना। कोई बात नहीं, कल दे देना। ठीक है। अभी आपको यहाँ से पढ़ना है, साइटोस्केलेटन यहाँ से है ना, ये है साइटोस्केलेटन, यहाँ से पढ़ना था। ये सारा लिखा हुआ था, ये सब पढ़ना था। ये जो पेन से लिखा है ना वो पढ़ना था, बाकी साइड में बात। तो वो टेस्ट तो रहेगा ना अभी? टेस्ट तो भी रहेगा। ठीक है, तो मैं दे दूंगी किसी को। टेस्ट तो अपने ही हाथ में है। ठीक है। बट फ्रेश टेस्ट देने का अलग होता है ना कि भाई जैसे का एग्जाम आ गया, फुल स्पीड तैयारी किया, दे दिया, वो क्रेज अलग रहता है ना। चलो कोई बात नहीं। इनमें से तो फॉलोइंग प्रोसेस है साइटोस्केलेटन, ये हो गए नहीं बार। Contractile formed during cytokinesis, anchoring the extras, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एंकरिंग द एक्स्ट्रासेल मैट्रिक्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें तो था ही नहीं। और साइटोस्केलेटन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, है ना? थर्ड पोस्ट लगता है क्या? नहीं सर, नहीं है। थर्ड पोस्ट का मतलब ही नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट्स इट। फर्स्ट और सेकंड आंसर है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नाम ही बेकार है। कौन सा क्वेश्चन है? 19 और 20। मेडिसिन इन विच द फॉलोइंग प्रोटीन विल अफेक्ट द फंक्शनलिटी ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। फ्लैजेला से रिलेटेड डायनिन है कि काइनेसिन है कि मायोसिन है? 3 ही तो नाम दिया है। दोनों है, वन एंड टू। मायोसिन नहीं है, ठीक है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटिक एंड मोटर प्रोटीन डायनिन, releases ATP by dynein producing a sliding movement of magnetic filament that produces। मेरा आंसर गलत का एक को है, आंसर सही होना चाहिए ना फिर। अच्छा, आंसर 1 एंड 2 है इसका। काइनेसिन दोनों होना चाहिए। काइनेसिन भी है, काइनेसिन और भी है। काइनेसिन है भाई। काइनेसिन इज मोटर प्रोटीन दैट एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, बट पर इट वो इज नॉट। प्रेजेंट ही नहीं होता फ्लैक्सिन में। हाँ बेटा, नहीं होता। हाँ। कैसे दोनों होना कर रहे हो तुम। गुरप्रीत से मत उलझियो, और शेर नहीं है, लड़ जानी है, खूब लड़ी मर्दानी। नीचे पढ़ा नहीं था ना अरुंदम ने। कोई बात अरे नहीं, यार वो कोई बात मेरा नहीं। पता नहीं कैसे सही हो गया सर, ये फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं सवाल ही नहीं था। मैंने आंसर गलत लगा हुआ है, इतनी तरह सही हो नहीं गया। सर, वो ना गलत मेरा ऑप्शन वाला लगा सही है। नहीं गलत ऑप्शन लगा है। गुरप्रीत का रॉन्ग है ना? हाँ मेरा रॉन्ग नहीं है, मेरा सही है। हाँ, वही कहने का मतलब एक ही सही होगा ना, या तो अरिंदम का या तो गुरप्रीत का। तो गुरप्रीत का यहाँ पे सही है। तो मेरे पार्ट में लगा हुआ गलती। पर वो एक्सप्लेनेशन में भी तो वो कह रहा है कि वो फ्लैजिला में प्रेजेंट ही नहीं होता था। हाँ, काइनेसिन नहीं होता, ठीक, क्या नहीं होता। तो वो एक्सप्लेनेशन फिर से दिखाइए। लिखा हुआ है, काइनेसिन इज ए मोटर प्रोटीन दैट एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्लैजिला। मायोसिन इज ए मोटर प्रोटीन दैट एसोसिएटेड विद एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है सर। सीलिया फ्लैजिला इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सीएसआर में, पटक पटक के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है इसमें, मैंने देखा है, समझे?
मैंने देखा है इस पे दिमाग क्वेश्चन माइक्रोट्यूबुलर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसमें होता है माइक्रोट्यूबुलर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? सिलिया, फ्लैजेला, माइक्रोविलाई। सिलिया, माइक्रोट्यूबुलर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? Microtubule. Correct answer 1 and 2. Correct answer 1 and 2 है कहाँ? फोर्थ ऑप्शन ना, ठीक है। Cilia, microvilli, flagella, all are produced from cell body. Cilia and flagella function in cell modality and contain organized system microtubule and motorpropel. Microvilli are often used as mechanosensor and are primarily made of cross-linked actin gland. Microtubule are therefore found primarily in cilia, flagella, but not in microvilli. ठीक है, cilia flagella का पार्ट है माइक्रोट्यूबुल। ठीक, क्वेश्चन नंबर आंसर है सर 23 था ये। 21 हुआ सर, अभी 22 करना है। Which cell organelle can be described as a big tail projecting from cell like a motor? Cytoskeleton, centriole, flagellum. फ्लैजिलम सर। हाँ सर, Cell 100% ये वाला तो 100%। है इसका बिग टेल। हाँ सर, ये 100% सही है मेरा। श्योर है ये गुरप्रीत का अगर गलत होगा तो अरिंदम का सही होगा पक्का। ये। सही है मेरा भी। सर मेरा भी सही है, इसका भी सही है सर। हाँ, flagella long hair-like extension of plasma membrane. Movement of flagella propels some cell through fluid. ठीक है। हाँ, flagellum ये है, क्योंकि बेसल बॉडी जो होती है ना, बेसल बॉडी जो होती है वो घूमती है ना, फिर ये भी घूमती है, फ्लैजेला भी घूमती है, तो एटीपी पावर्ड होती है ये चीजें। ये पढ़ाया भी था, राइट। Centriole consists of microtubular base of cilia and flagella and are involved in spindle cell formation during cell division. The cytoskeleton is a network of protein fiber in the cytoplasm that gives shape to cell and is typically involved in the cell movement. A pilus is a hair-like projection located on the surface of certain bacteria and is typically used to attach bacterium to another cells. ठीक है, ये हो गया 22। 23 तो बहुत इजी था। ड्रग कॉल्चिसिन पे कितना मैंने पढ़ाया था ना, प्रोमोट माइक्रोट्यूबुल। प्रीति का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन था, इसमें मैंने आधे घंटे लेक्चर लिया था, याद है प्रीति? राइट, तो इसका आंसर डिसअसेंबली होना चाहिए ना। डिसअसेंबली आंसर होना चाहिए, असेंबली नहीं हुआ है। असेंबली लगा है, नो डिसअसेंबली है, डिसअसेंबली है, करेक्ट। हाँ वही तो सर। अरे मैं डिसअसेंबली लगाते लगाते पता नहीं कैसे ये यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने बीच में, और बी एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया। नहीं डिसअसेंबली है टोटली। इसका तो मैंने अच्छे से पढ़ाया था, इसमें तो रॉन्ग होने के सवाल ही नहीं। हाँ यस सर। यस सीरियन देखो, ये पॉलिश करके पढ़ाने का फायदा ही होता है। अगर मान लो बाई चांस वो एग्जामिनर गलती कर रहा है तो आपकी तरफ से गलती नहीं होती और उसका बेनिफिट मिलता है सीएसआर में। ऐसा नहीं कि सीएसआर में गलती नहीं होती, सीएसआर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट सीधे सीधे मिलता है उन बच्चों को जिन्होंने बिल्कुल सही गेस करके लगाया होता है। जैसे डिसीजन आता है प्लस सबको मार्क मिल जाता है, उसी पे सिलेक्शन हो जाता है। इस बार तो मेरा संडे बहुत हैक्टिक हो गया है, 12 से 2 मीटिंग, फिर 3 से 5 मीटिंग, पागल ही हो गया था। फिर मैं 12 बजे रात तक आपका वो भी बना दिया था मैं सारा एमसीक्यूज। मेरा हार्डवर्क तुम्हारे ही सहारे है। तुम लोग जिस दिन सफल हो जाओगे ना तो मैं न जाने क्या करूंगा। मैंने प्रीति को वादा किया है कुछ, है ना प्रीति? क्या वादा किया है? ये तो सही है, 24 पार्टी का। हाँ पार्टी का, लखनऊ आके पार्टी देंगे। लखनऊ में 4 बाग लखनऊ में मैं फेमस कर दूंगी।
4 भाग लाइफ इस साइंस चीज को। से। नहीं, उसी दिन उसका नाम भी चेंज कर देंगे, मैरिड लाइफ साइंसेस। सारे मैरिड लोगों का एक जोन बन जाए। देखो, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, फैमिली, बच्चे हैं, तो तुम यही ज्वाइन करो, क्योंकि ये दिस इज द बेस्ट एंड सपोर्टेड बाय ऑल हस्बैंड्स, स्पॉन्सर्ड बाय। सपोर्ट तो मजबूरी में करना पड़ेगा उनको। 25, ठीक है, विच इज द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन सा सही भाई? मुझे ये बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन लगता है। ऑल ऑफ दिस। दुनिया के सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन मुझे लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आजकल ये मुझे फैशन। भाषण पढ़ना नहीं अच्छा लगता, जो इतना बड़ा ऊपर भाषण दिया होता है उसके बाद नीचे पूछते हैं इसका क्या आंसर होगा। मैं कभी नहीं वो आंसर देती, कभी भी नहीं दिया मैंने। सही है, कौन दिमाग खराब है? विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऐसे ही सही रहता है। वो हिंट छिपा होता है, पता है? जितना लंबा क्वेश्चन होता है उसका हिंट क्वेश्चन में ही छिपा होता है, आंसर का, और सबसे लास्ट लाइन में। ऊपर का पैराग्राफ तुम सारा छोड़ दो, वो कहानी होती है। सबसे लास्ट लाइन जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उसके जस्ट एक लाइन ऊपर पढ़ो, वही आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका सारा सही होता है। माइक्रोबिलामिन एक्टिन, हाँ, एमएफ एकदम रट लो, ये एमएफ एक्टिन, माइक्रोबिलामिन, है ना, आईएफ, रेजिस्टेंट टू कॉल्चिसिन एंड साइटोकैलासिन डी। ये सब वन ऑफ द बेस्ट क्लास के मतलब क्वेश्चन जो मतलब मुझे लगा। और अभी तो बहुत सारे मेरे दिमाग में थे जो क्वेश्चन मैं दे ही नहीं पाया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आज सुबह जैसे तैयार किया, जबरदस्त क्वेश्चन था, कभी भी आएगा तो आप आंसर फटाफट दे दोगे। हाँ, बनाया हाँ, प्रॉब्लम ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये आज का मैंने क्वेश्चन बनाया था आपके लिए। ये मायोसिन का डेटाबेस है, ठीक है, मोटर डोमेन का, मायोसिन का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, टफ नहीं किया, ताकि आपको एनालिसिस में कर सकूं। दिस डायग्राम कंक्लूड डिफरेंट मायोसिन स्ट्रक्चर इन स्पीसीज इन सी पार्ट, होमोलॉजी इन मायोसिन 1 to XIV, difference मायोसिन स्ट्रक्चर इन स्पीसीज इन एन पार्ट, डिफरेंस इन सिंगल अमीनो एसिड सीक्वेंस। देखो, जिस साइंटिस्ट ने इसके पीछे पूरा लग की कहानी बनाई होगी, 4 लाइन में इसका पूछ दिया गया है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ही मैंने ढेर सारा पूरा एक चैप्टर ही बना दिया है। ये मॉलिक्यूलर मोटर्स, मॉलिक्यूलर मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने पूरा काम किया नहीं। अल्जाइमर्स डिजीज पे मैं स्पेशली यहाँ पे देख रहा था कि कैसे हो रही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है अल्जाइमर्स के बारे में कि दिस इज एग्रीगेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, बस इतना ही जानते हैं। हमें ये नहीं पता कि पूरी मॉलिक्यूलर मोटर ही फेल हो जाती है। कैसे फेल होती है? मायोसिन बी की वजह से, कि सेकंड की वजह से, कि थर्ड की वजह से, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे डिस्कवरी हुई, है ना, बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स आ गए। और आज तक टोटल कितने मायोसिन है, नंबर ऑफ मायोसिन 18 टाइप की मायोसिन है। हम दिखाता हूँ वो कहाँ गया, सर्कुलर स्ट्रक्चर डेटाबेस से लिया, क्या चला गया। आज का मेरा सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन कर रहा था, पूरे दिन बैठ के रिसर्च किया गया। अरे यार, कोई ढूंढो, मिलता नहीं है तो ढूंढा। हाँ जी, इवन मॉस्किटो में ढूंढा गया है ना, एमीबा में ढूंढा गया, सारा कुछ का करके फिर इस पे जो क्वेश्चन नहीं आपको मिला था, कंजर्व डोमेन, विच वन इज ट्रू, जिसको अरिंदम कर रहा था कि नहीं सारा सही है, याद है? ये क्वेश्चन उससे भी कहीं ना कहीं मैच करता है। यू कैन सी द मोटर, ऑल मोटर डोमेन आर कंजर्व। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अभी मैं डिस्कस करेंगे इसको। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ग्रीन वाला। तुम लोग म्यूट क्यों कर लेते हो भाई? कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा बोल दिया करो। चलो, साइटोकॉल्चिसिन और साइटोकैलासिन बी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रख लो। इंटरमीडिएट फिलामेंट और रेजिस्टेंट टू, और ये लाइन पूरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, खास करके जब ये ड्रग्स का नाम आजकल एक फैशन चल पड़ा है सीएसआर में, उनको कुछ नहीं पूछना बेसिक वैसे, सिर्फ इनहिबिटर पे बात करते हैं आजकल। ठीक है, और खास करके ऐसे रेजिस्टेंट टू है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट रेजिस्टेंट टू पॉलीसिसिन। अब इसी पे कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंट तो स्टेन किसको करेगा, यानी माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट को स्टेन करेगा। ठीक है, स्टेन करेगा या उसको रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, that is the problem. This is 25. Which are the problem is a microfilament inhibitor. ठीक है ना, पहले हमने क्या देखा था, पहले भी माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर था, साइटोकैलासिन बी माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर, साइटोकैलासिन। नोट कर लिया था इसको? हाँ, हेलो, कहाँ चले गए? यस सर। इसको नोट कर लो। यस सर। माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर कौन? साइटोकैलासिन बी। साइटोकैलासिन बी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ाई करो। ठीक है, ये नोट कर लो, होमवर्क लिख के आना। अबाउट साइटो कैसे इनहिबिट करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन, हाउ साइटोकैलासिन बी इज गोइंग टू इनहिबिट माइक्रोफिलामेंट MF। बहुत लोगों को माइक्रोफिलामेंट याद नहीं होता होगा, तो MF करके याद कर लो। माइक्रोफिलामेंट सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना, फिर इंटरमीडिएट, फिर माइक्रोट्यूबुल सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो साइटोकैलासिन बी, अब ये एज ए ड्रग कैसे यूजफुल है, ये सारा साथ मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसको जरा सा ध्यान से देखना कि कैसे इस पे है ना। हाँ, चलो, दिस क्वेश्चन वाज 26। इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन नेल एंड हेयर, ये तो बताया था मैंने, बहुत ही आसान था। केराटिन है सर आंसर। हाँ, keratin. This is 27. Movement of material in an axon are mediated through, ये भी डिस्कस हुआ था मेरे क्लास में, है ना? हाँ, ये बताया था मैंने, साइटोस्केलेटल ट्रैक पे वो मूव करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल के ऊपर तो डायनिन काइसिन कार्गो लेके घूमता है, उसी की बात तो कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने उसे एनिमेशन दिखाया था, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाना मुझे आज था। ये कार्गो मूवमेंट डायनिन काइनेसिन, ये पढ़ाना था जिनको, हेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। थर्मो मैकेनो-केमिकल साइकिल, इसको न्यूक्लियोटाइड साइकिल भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड साइकिल भी पढ़ाना है। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड साइकिल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, रिसर्च पेपर से लिया मैंने, इसका लिंक भी आया होगा। सब बढ़िया, रिसर्च पेपर ये है, अगर मैंने बंद नहीं किया है तो। सेल्फ असेंबली डायनिंग, चलो पुराना पेपर है ये, नहीं ये भी हो गया, ये नहीं। कितने आवर्स लगे थे तुम लोगों को करने में? क्वेश्चन काफी ज्यादा थे ना। 29 कुछ मोटर 1 घंटा तो लगा ही था सर। 1 घंटा 30 मिनट मैंने दिया भी था, टाइम टेकन लिखा हुआ होता है, गुरप्रीत ने टाइम लिया है 1 घंटा 2 मिनट 24 सेकंड। ये भी कैलकुलेट होता है ना उसमें, जब एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट होता है, जितना कम टाइम लोगे उतना एक्यूरेसी स्कोर हाई होता है।
लेकिन इतना क्या करना बचा के, विच मोटर प्रोटीन सुपर फैमिली डज नॉट मूव अलोंग। एक मेरा स्टूडेंट है अर्नब, अर्नब और एक सुदीप्ता। सुदीप्ता का तो इंटरव्यू भी हमने इसमें पब्लिश किया है, यूट्यूब चैनल पे है हमारे, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल को देख लेना एक बार। सुदीप्ता का अगर डालोगे ना, उसका इंटरव्यू है पूरा, देखना उसने क्या सजेशन दिया है। ये ना, हाँ, सक्सेस स्टोरी। एक बात बोलता हूँ मैं। पार्ट ए जो है ना, वो बहुत स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। और तुम कुछ स्टूडेंट है जो गेस में कुछ क्वेश्चन लगाता है, ठीक है। गेस में क्वेश्चन लगाते हैं, तो एक तो क्वेश्चन के से ज्यादा क्वेश्चन गेस में अटेम्प्ट नहीं करना। ओके ओके। आवाज आ रही सबको? और ये लोग रिकमेंडेड बुक्स भी पूछ रहे थे, कौन कौन सी बुक इनको फॉलो करनी चाहिए। पूरा सुना थोड़ा सा पहले से कर देते हैं। देखता हूँ कहाँ रह गया। अच्छा चलो, ये सिम्टम वाला फेज हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स भी, तो ये वही फेज है जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स भी ट्रिगर हो रहा है, राइट। इम्यून रिस्पॉन्स होगी। दूसरी एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फेक्शन चेन। आपने सुना होगा कि आउटब्रेक हो गया डिजीज, जैसे गोरखपुर में भी आउटब्रेक हुआ था डिजीज, मलेरिया का। हाँ, नहीं, जपनीज एंसेफेलाइटिस था। हाँ, वो तो पहले हुआ था, अभी मलेरिया हुआ था ना। मलेरिया नहीं, वो डिजीज जपनीज एंसेफेलाइटिस आउटब्रेक हुई थी। इसके बाद उसके पीछे पीछे बहुत सारी चीजें हुई, उसमें काफी बच्चों की डेथ हो गई। तो ये इसको कहते हैं इन्फेक्शन चेन। इन्फेक्शन चेन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पैथोजेंस ने इवॉल्व किया है। इसको मैं पढ़ रहा था आज, आपको मैंने शेयर भी किया था, है ना। होपफुली सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा इसको। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक एस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि कितने सिग्नलिंग पाथवे को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन्फेक्शन चेन के फॉर्म में, है ना। तेजस्विनी आ गई। हाँ तेजस्विनी। हेलो सर। हाँ, सुदीप्ता है ज्वाइंड। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। युवराज, Yajurved, you can ask, है ना, if you have any question about your assessment. हाँ सर। सर उनको मतलब थोड़ा उन्होंने कैसे स्टडी किया था वो थोड़ा सा डायरेक्टली बात करो। सुदीप्ता ऑनलाइन है, डायरेक्टली बात करो, ही विल रिप्लाई यू। हेलो सुदीप्ता। हाँ बोलिए। हाँ, लास्ट टाइम सर ने ग्रुप में भी मैसेज किया था, मतलब आप आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करो हम लोगों के साथ, लाइक आपने कैसे स्टडी किया, स्टडी कैसे प्लान किया वगैरह। तो आप हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस कर सकते हो क्या? हाँ देखिए, मैं जब एमएससी पढ़ता था तो उस टाइम से ही मैं स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो सर का नोट्स बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा सा टीचिंग करता है, वो बहुत सा हेल्प किया। लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ओके ओके। हाँ। और एक बात बोलता हूँ मैं। पार्ट ए जो है ना, वो बहुत स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। और तुम कुछ स्टूडेंट है जो गेस में कुछ क्वेश्चन लगाता है, ठीक है। गेस में क्वेश्चन लगाता है, तो एक तो क्वेश्चन के से ज्यादा क्वेश्चन गेस में अटेम्प्ट नहीं करना। ओके ओके। और ये लोग रिकमेंडेड बुक्स भी पूछ रहे थे, कौन कौन सी बुक इनको फॉलो करनी चाहिए, और स्पेशली रिवीजन कितना करना चाहिए, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, बायोकेमिस्ट्री से लेनिंजर बहुत अच्छा बुक है।
ओके सेल बायोलॉजी, एल्बर्ट्स एंड लॉडिस, ठीक है, एल्बर्ट्स और लॉडिस, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। जो रेप्लिकेशन का पार्ट है, माने आई मीन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो वाटसन से पढ़िए, ठीक है। इम्यूनोलॉजी कुबी से पढ़िए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट से पढ़िए, और क्या है, और प्लांट फिजियोलॉजी टाइज एंड जिगर, ठीक है, टाइज एंड जिगर। और जेनेटिक्स के लिए जो सर ने बताया वही। हाँ हाँ, जेनेटिक्स सर के नोट्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके साथ हाँ, ये हाँ। नोट्स, ये बुक्स पढ़े तो अच्छा है, ठीक है। तो जेनेटिक्स के लिए आप रसल के रसल की जेनेटिक्स में पढ़ाता हूँ स्पेशली। हाँ हाँ, रसल रसल की ग्रिफिथ के। हाँ, हाँ। और इकोलॉजी के लिए स्मिथ बहुत अच्छा है, स्मिथ का बुक, ठीक है, स्मिथ इकोलॉजी के लिए। स्मिथ की ना। स्मिथ हाँ हाँ, स्मिथ का। हाँ। और ओके लास्ट से क्वेश्चन है पार्ट 13, यूनिट 13, वो सभी चीज बुक में नहीं मिलता, वो आपको नेट से सर्च करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बायोस्टैट का बुक तो है ही, और बाकी जो कुछ टेक्निक्स का क्वेश्चन है वो आपको नेट से सर्च करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ओके ओके और इन लोगों को एक दिक्कत और आती है, हाँ, एक दिक्कत और आती है रिवीजन में। रिवीजन लास्ट में हम लोग कर नहीं पाते हैं। वो कैसे रिवीजन करें? करने के लिए आप जब पढ़ता है ना, तो एक नोट्स बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट एक नोट्स खाता में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए पहले, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा रिवीजन, तो बहुत हेल्प करता है एग्जाम के पहले। ओके ओके Anyone want more answer? Any question from anyone else? विपर, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैंने एक चीज पूछनी थी कि जैसे भी कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, क्या? तो वो कुछ समय जैसे कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, कुछ समय लिए वो याद रहती है, और हफ्ते बाद, हमें 2 हफ्ते बाद वो भूलना शुरू हो जाती है वो चीज। इसीलिए कह रहे हैं ना, नोट्स बनाओ थोड़ा। हाँ हाँ, एक शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट्स 1-2 लाइन में शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख रखिए एक खाता में। वो रात में जब सोने के पहले वो नोट्स फिर से याद करना पड़ेगा, तो आप पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। ओके और जो पाथवेज रहते हैं, बायोकेमिस्ट्री हो या प्लांट फिजियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट के पाथवेज है, तो हाँ। वो पाथवेज का क्या करने का मतलब, वो डायरेक्टली लर्न करने के, क्योंकि वो तो लर्न ही करने पड़ते हैं ना, उनके हाँ, जो स्टेप्स देखिए, रहते हैं, एंजाइम वगैरह। अलग प्रोसेस है, तो आप फॉर्मूला बना के वो याद रख सकता है आपका, मतलब अलग अलग फॉर्मूला बना के वो याद रख सकता है, लेकिन नहीं बना सकते हो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके रवीना, कुछ पूछना चाहते हो? यजुर्वेद, पूछना चाहते हो कुछ? हेलो, यजुर्वेद, पूछना कुछ बेटा? सर वो म्यूट है यजुर्वेद। अच्छा, म्यूट कर लिया? नहीं, वो कर सकता अनम्यूट। ठीक है, इतना से काम चल 2-3 सजेशन देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत बढ़िया बताया। एक तो पढ़ते समय ही आपको सारा चीज क्लियर होता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक द नोट्स, मैं बार बार कहता हूँ उसको। दूसरा ये चीज है कि जो फोर्स लगानी होती है, वो जैसे डिक्लेयर होता है सुबह लेक्चर, पूरी फोर्स लगा दो कि कहाँ से हम पढ़े, मतलब डिस्कशन में क्या पूछना है माइंड में आता नहीं है। जब लेक्चर चल रहा होता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि वहां पे हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो जब आपके माइंड में थोड़ी पिक्चर होगी कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पूछने हैं, क्या समझना है, अगर टारगेट हमारा क्लियर है। ठीक है बच्चों,
तो ये लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, तुम लोग जब चाहे सुन लेना, ठीक है। हेलो, सो गए क्या सारे? यस सर, यस सर। अच्छा सजेशन नहीं था ना? सर, सजेशन अच्छा था ना, इसको तुम लोग बढ़िया से नोट कर लो। और मेरा बच्चा निकाल चुका है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जो डिजर्व करता है, देखो जो उस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो 29 हो गया। और इस बार मुझे बहुत उम्मीद है, किससे किससे, प्रीति से, अरिंदम से, गुरप्रीत से, और एक हमारा पुराना बच्चा था लोकेश, इसने बीच में छोड़ दिया, अचानक से ड्रॉप आउट कर दिया। बहुत अच्छा उसके मार्क्स आते थे, पता नहीं क्यों छोड़ दिया हमने। काफी एफर्ट डाल रहा था वो, कोरोना के बाद इसने छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फ्लोरेसेंटली लेवल कैन रिवील द अटैचमेंट साइट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ऑन सबस्ट्रेटम। इस तरह के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन वो दे सकते हैं ना। कोफिलिन, फ्लैजिला, विम्पिलिन, माइक्रोट्यूब्यूल, ये मैंने दिखाया भी था, इसका डायग्राम भी दिखाया था। लेवल कोफिलिन कैन रिवील द अटैचमेंट साइट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ऑन सबस्ट्रेटम। Explanation is vinculin is a membrane cytoskeletal protein that aid in adhesion within mammalian cells. The site of attachment between migratory fibroblasts and substrate can be revealed using person level vinculin. Vinculin है C ऑप्शन है, तो C ऑप्शन है। अच्छा, इसका ये नहीं है, vinculin है, गलत लग गया है। जो मैं नोट कर लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में हमने चेंज करना, याद है? जरा बताना तो मैं बढ़ गया। तो एक स्टार्टिंग में था वो सिलिया और फ्लैजिला वाला, कौन सा नंबर का? अब ये याद नहीं है। इस वाला था, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए, ये वाला, और एक ये वो वाला, डिसअसेंबली वाला। हाँ ये वाला, और वाला। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए। हाँ, हाँ ये क्वेश्चन 4 का सी, ठीक है। 30 का भी सी है। और कौन सा था? 5th का तो सही था मेरे ख्याल से। वो डिसअसेंबली वाला कुछ था, हाँ, वो कॉलसिस्टिन वाला। हाँ हाँ, ठीक है। 10 11 पूरे बैकवर्ड बनने तो सही था। इफेक्टिव नेगेटिव, ठीक है। ये भी सही था, 12 15, ये भी ठीक था। 14, ये कल ठीक था। 15, ये भी सही था। 16, हाँ ये भी सही था। 17, ये भी सही था। 18, 19, 20, ये 1 20 पे 20 का 21 90 का प्रेजेंटेशन का मिस्टेक है। ये सही था। 22 23 रफ कॉल चीज़ ना 23 होगा। क्वेश्चन 23 इसका ए सही है। 24 ठीक है। 5 6 ये मतलब नहीं ठीक है। 22 भी ठीक है। सर ये इससे हाँ इधर छिपता है। Immediate throw, not critical. Track is सही था। This which में क्या इस वक्त करने move around not critical. Myopsy ठीक है। ये सही। Recently leveled हाँ ये वाला सही। 30 का था C काउंट कर लिए यहीं तक पहुँचे ही थे। 31 3 क्वेश्चन आया ना। Crawling cells over a substratum is an example of
crawling of cells over a substratum is an example of कीमोट्रैक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा था मुझे। कीमोट्रैक्शन पहला जो मस्कुलर मोटिलिटी, हाँ, नॉन मस्कुलर जो बेवकूफ़ी भी करेगा वो पहले लगाएगा कीमोट्रैक्शन, न्यूरोइलाइजेशन, नॉन मस्कुलर मोटिलिटी, वेबरजेनिक सेक्शन ऑफ नॉन मसल मोटिलिटी, नोट कर लो हमेशा। क्रॉलिंग ऑफ सेल ओवर ए सबस्टेंस एग्जांपल ऑफ नॉन मसल मोटिलिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तुम लोग तारीफ कर दिया करो कभी कभी, जब अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, है ना? हाँ सर, अच्छे क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग एक्ट एज एन अट्रैक्टेंट फॉर एक्सॉन्स, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। नेट्रिन, नेट्रिन, तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतना बेकार सा क्वेश्चन लग रहा था मुझे। और ये नेट्रिन पता नहीं क्या, क्वेश्चन नेट्रिन करके सुनते ही मैंने ये क्या है, कभी दिमाग नहीं खराब हो गया, है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब देखो वो क्वेश्चन थे कि क्या करेंगे जो तुम ये लगाएंगे। मुझे समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था मुझे। केमिकल अट्रैक्टेंट पूछा था, एक्सान के जो डेवलपमेंट का पार्ट था ये, है ना? लिखा तो है, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन कब आता है? जब तुम लोग सबमिट करते हो एग्जाम दे के, तब आता होगा ना? एग्जाम जब सबमिट करते हो उसी टाइम आता है कि बाद में हाँ, आता है? सबमिट करने के बाद आता एग्जाम सबमिट करने के बाद। हाँ ठीक है। हमारे देखो नीट के बच्चों ने कितना नंबर पाए हैं, देखो बुरा हाल है। 45 बच्चों ने ज्वाइन किया है और 4-5 बच्चों ने टेस्ट दिया है, माइनस में नंबर आए हैं। ये देखो -2। पूनम बेंगलोर से है, स्टेफी महाराष्ट्र से है। ये लोग बहुत मतलब ऐठन में रहते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये अनंता बेंगलोर से है, साउथ से, हैदराबाद से। इनका थोड़ा अच्छा है। स्टेफी ने दोबारा दिया तो नेगेटिव आ गया, फर्स्ट टाइम दिया तो थोड़ा अच्छा नंबर आया था, मतलब गेस किया था टोटल, और 2 ही बच्चों ने दिया। बुरा हाल है। और ये सारे बच्चे इतने ऐठन में रहते हैं जिसे इनको दुनिया की सारी चीज पता है। कि उसका आया 31, माइनस में आ रहा है स्टेफी का। 3 बार बेचारी पढ़ कर रही, माइनस में जा रही है। 1 - 1 रमनदीप कौर। ये लोग नीट निकालेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सोचो। इनको लेवल 1 का क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है, कोई भी लगा दे। बाप रे। और आज क्लास करने से 5-6 लोग आए, ज्वाइन किए 51 लोग। क्या मैं क्लास करूंगी? चलो, कुछ लोगों को तो कल में हटा देंगे। यस, चलो तो आपको ओके। 33 एग्रीगेशन। हाँ, ये तो बहुत अच्छा था, इसी की बात मैं कर रहा था। इस पे और रिसर्च की जरूरत है, इसे पढ़ेंगे। एग्रीगेशन इजी क्वेश्चन है सर। हाँ इजी है, बट अभी रिसर्च हो रही है इस पे, कभी भी टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पे। एग्रीगेशन ऑफ न्यूरोफिलामेंट लीड्स टू न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर, बहुत इजी लगा सकते थे इसको, क्योंकि अल्जाइमर्स पार्किंसन में यही होता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, जो मेरे पास आज का डेटा है, वो है मॉलिक्यूलर मोटर्स के फेल होने की वजह से एग्रीगेशन होती है। क्योंकि जो कार्गो को ले जाना था सामान, जैसे कूली हो, है ना? कूली के बाद समझ रहे हो, कूली स्टेशन पे अगर वो सामान लेने जाना बंद कर दे तो सारा काम क्या होगा? पहले क्या कहते थे साइंटिस्टों का कॉन्सेप्ट, देख रहे हो कितने जल्दी चेंज होता है। पहले कहते थे कि भाई फोल्डिंग खराब हो गई, ठीक है ना? ओहो, कोई बाहर है क्लास की? समन बेटी है? कोई वेटिंग में तो नहीं है? ग्रुप में वो आईडी डाल दो जरा। दिशा पता नहीं क्या ज्वाइन नहीं कर पा रही है।
आईटी नहीं है क्या? आईटी में डालना पड़ेगा। हाँ दिशा आ तो गई, ठीक तो है। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ सर अभी कुछ नहीं हो नहीं होता। सेम आईडी था, कोई चेंज करता ही नहीं है ना? अच्छा कुछ नेटवर्क का इशू था मुझे लगता है। चलो 33 में तो बहुत इजी हो गया। हाँ अरिंदम मैं तुमको बता रहा था स्पेशली कि अर्लियर साइंटिस्ट गिवन द कॉन्सेप्ट दैट बिकॉज ऑफ फोल्डिंग प्रॉब्लम, है ना? तुमने भी सुना होगा, ये कहीं पढ़ा होगा पुरानी बुक्स में। यस ये लिखा है कि जो फोल्डिंग चैपरॉन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये सारे एग्रीगेट कर जाते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया अभी कहते हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन पे सामान इकट्ठा हो जाए तो ले कौन जाएगा? कूलियों ने स्ट्राइक कर दिया है। तो दिस इज वेरी सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ ड्यू टू फेल ऑफ कार्गो ट्रांसपोर्ट, है ना? अगर इसमें सर्च है तो मैं दिखाता हूँ। सर्च है क्या नाम था उस डिजीज का? अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स की स्पेलिंग LZI है ना? ZI। चलो LZ से ZHI ये है अल्जाइमर्स, ओके ना? LZHI है। देखो ये कहते हैं कि ये पाइनिसिन है, मैं भी डिस्कस करूंगा ही, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ कि they are saying कि Alzheimer's has a different cause why this is happening, right? So they are saying कि there are motor protein receptor molecule in nerve selection and it becomes abnormal, है ना? That's why there whatever the processing of proteins will be there, this is totally absent. This is also they believe, scientists believe that these amyloid precursor of protein is going to deposit because of direct binding of light chain on tail of kinesin 1, right? And to be transmembrane protein receptor molecule in nerve cell. मतलब कहते हैं जो भी प्रोटीन था एग्रीगेशन they were bounded by kinesin 1, तो उसको जाने नहीं देता, ट्रांसपोर्ट ही नहीं करने देता। ठीक है ना, एक जगह बाइंड करके रखा हुआ है। तो कई मैकेनिज्म इसको दी गई है। कभी कहते हैं कि मोटर प्रोटीन फेल हो गई, है ना? अल्जाइमर्स में मतलब थक गया हूँ मैं पढ़ के कि साइंटिस्ट हैज नॉट अराइव्ड ए सिंगल कंक्लूजन। मैं इसको पढ़ के सरप्राइज हो रहा था कि कैसे रिसर्च हो रही है ये कौन सी रिसर्च हो रही है? देयर आर लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म। कभी कहते हैं बाइंड करके रखा है, कभी कहते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता, है ना? कभी कहते हैं वो फोल्डिंग चेक्रॉन्स की प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी डेंजरस क्वेश्चन। चलो 34 में आ जाओ। दिस इज एपिडर्मोलाइसिस, ये तो समझ ही नहीं आएगा सबको। एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिम्प्लेक्सा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। नहीं सर आया था सर, ये तो इजी क्वेश्चन था। हाँ एपिडर्मिस तो रिलेटेड है केराटिन से। केराटिन सर, क्योंकि सर एपिडर्म आ गया ना सर, एपिडर्म केराटिन आ गया। बस सीधा तो लॉजिकल क्वेश्चन था बेवकूफ बनाने के लिए। ये उन नॉनसेंसों के लिए जो कोरिलेट नहीं कर सकते कि एपिडर्मिस केराटिन से रिलेटेड है। विमेंटिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विमेंटिन सर जैसे मैं हाँ सर जैसे मैं रिलेट नहीं कर पाई। मुझको तो ये ऐसे लोगों के लिए मैंने डिजाइन ही किया था जो 34 क्वेश्चन को भी गलत लगा सकते हैं, जबकि ये इतना इजी क्वेश्चन था। इसमें तो मतलब 100% श्योर होके लगाना था। इपिडर्मिस आ गया, बुलोसा सिम्प्लेक्सा, कुछ भी नाम दिखे वो केराटिन से ही रिलेटेड होगा, नथिंग एल्स। This is a genetic disorder that associated with extremely fragile skin that blisters easily, है ना? फोड़े हो जाते हैं स्किन पे बहुत जल्दी। The disease is caused by mutation in the gene encoding K14, a type 1 keratin converter. Vimentin, सीधा है। 36
Absence of the intermediate filament, Desmin has a negative impact on Desmin. Desmin का नाम कहाँ सुना है? अच्छा, intermediate filament. Okay. Has a negative impact on hepatocyte, nerve cell, epithelial cell, muscle cell. मसल सेल IF muscle cell से related ही है मेरे ख्याल से. Absence of IF, Desmin make the muscle cell extremely fragile. Desmin pulpituate play a key role in maintaining alignment of myofascial fiber of muscle cell. ओके जी, 36 हो गया. अब आज तो मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ये पूरा खत्म करूंगा बस. 36 मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है. विच इज द टाइप ऑफ IF इंटरमीडिएट फिलामेंट epithelial cell. ये तो सीधा सा था ना, केराटिन. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. 37 38 इंटरमीडिएट फिलामेंट टेंड टू बी लेस सेंसिटिव टू केमिकल्स. अच्छा, ये भी क्वेश्चन था. केमिकल एजेंट है डिफिकल्ट टू सप्लाई, टफ हो जाता है. 38 unlike the cytosolic element in the assembly of intermediate filament there is no requirement of. हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है. इसको मैंने क्लास में भी बार बार बोला है ना. there is no requirement of ATP during the assembly of filament. याद आ रहा था? 38 lectins are proteins. Type 5th intermediate filament are called lamins. इसको याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार से सर पूछ चुका है. There are class 1, 2, 3, 4 of pulpituate segmented intermediate filament involving construction of cytoplasmic filaments. Class B called lamins are present part of inner lining of nucleus. Core of the cilium is called hexonema. Right? That is outer microtubule in cilium are generated from basal body. ठीक है. Calcimide is a drug that acts on tubulin. ठीक है. Calcimide tubulin को ही बाइंड करता है. नोट कर लो. 54 How many cytoplasmic diamonds are present? ये बहुत भी है क्वेश्चन, काफी कंफ्यूजिंग था ना. How many cytoplasmic diamonds are present in the cell? 2 होते हैं. कौन से? काइनेसिन है, मायोसिन. ठीक है, वो हमने पढ़ा नहीं था तो हो सकता है कई लोगों ने छोड़ दिया. Which microtubule? हाँ, ये पढ़ाया था मैं. Which microtubule is protein is responsible for movement of cilia? ये क्वेश्चन तो लगा ही सकते थे. ऑप्शन इज डायनिन. ठीक है, डायनिन the first cytoplasmic motor protein associated with microtubule to be discovered in 1963. The protein is responsible for movement of cilia. 7. Which of the following family of kinesin is capable of movement along microtubule? Which of the following family of kinesin is incapable of movement along microtubule? Family of kinesin. Only 3 is correct. Okay. Smallest microtubule motor proteins are smallest microtubule protein. हाँ, smallest वाला तो हो गया था ना, बताया था. डी वाला काइनेसिन. रिएक्शन पढ़ाऊंगा तभी क्लियर होगा तुम्हें. वैसे सही लगाया है. In an action microtubule are entered with their minus end.
माइनस प्लस का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से क्लियर करके रखना है। 50 लास्ट, which protein moved toward the minus end of magnetical drive? नया की एरे ऑफ शार्प बनी तो बहुत ही इजी नहीं था, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनसीजी कैसे लगा लिया गुरप्रीत? कैसे गेस किया होगा? ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। गैस मारा है सर। हाँ वो हमें लग ही गया। बड़ी सही लगाती है गैस। चलो भगवान करे ऐसे लग जाए तुम्हारे तुक्का और तुम्हारा सिलेक्शन लग जाए। बाकी लोगों ने क्या किया है? हाउ मच मैंने मार्क्स? कुछ मांगा ही नहीं। क्या नहीं मांगा? नहीं सर, सॉरी सर, वो घर पे। समझ गया था मैं। अरे कृति इतना कम नंबर क्यों आया है? पढ़ाई नहीं किया है ना? सर मैंने क्लास में किया था ना। हाँ नहीं चलो फिर भी ठीक है, अगर क्लास नहीं किया और 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आएंगे, सही है। सर वो मेरा 3 क्वेश्चन सही है। सही है। देखो यहाँ पे ना हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कल कि किया अभी था तक क्लास मैंने सिर्फ। जैसे अरिंदम का मालूम है, ट्रैक देखो कि इसका परफॉर्मेंस अभी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 52 से, फिर यहाँ पे आ गया कितना परसेंट है? 55 के बराबर। फिर घट गया था अचानक यहाँ पे, फिर अच्छा, फिर घट जाता है 2 में, फिर अच्छा जाता है। ये कौन सा ट्रेंड है तुम्हारा अरिंदा? सर उसका नेट पैक गया, वो तो गया, उसका मैसेज आया अभी। डेली का नेट पैक डला होता है क्या? अच्छा मे भी कभी कभी कंज्यूम हो जाता है। चलो गुरप्रीत का देखते हैं। ये मेरा भी तो वैसे ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी इंसान की नाक है ये। इसका मुंह खुला हुआ है। अभी डाउन जा रहा है थोड़ा सा, है ना? यहाँ तो बिल्कुल डाउन था, अभी तो ठीक भी है ना? केवल अगर ये ड्रॉप आउट ये हटा दें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट करो, है ना? केवल एक ही है बस। चलो फिलहाल वो देखो। एंजाइम काइनेटिक्स में घटा मेरा। हाँ वो नहीं आती, एंजाइम काइनेटिक्स में गया मेरा। हाँ नीचे सबसे। हाँ प्रीति का देखता हूँ। प्रीति का तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट आता है देखो। खाली एक ये जरा सा, अदरवाइज ऊपर था, फिर बीच में उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी कोरोना, बाकी अभी ठीक है, राइज हो रहा है। ये अच्छा है ना कि मतलब आपको एक पता लगता रहता है कि, है ना, एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। लोकेश जो भाई साहब थे वो पता नहीं कि भाग ही गए। उनको कहा था कि तब तक नहीं छोड़ना। देख रहे कितना हाई पीक जा रही थी, बीच में इसने किया, फिर ड्रॉप आउट कर लिया। टोटल कितने टेस्ट दिए? ऑलमोस्ट 33 टेस्ट दिए थे इसने। इसकी चांसेस बहुत है सिलेक्शन के, लेकिन प्रैक्टिस छूट जाने के बाद कुछ भी कहना मुश्किल है क्या होने वाला है। अच्छा दिशा ने तो अभी एक भी टेस्ट नहीं दिया। दुर्गा, मनीष ने तो पता नहीं, समझ नहीं आती। दीपिका भी बहुत अच्छा एफर्ट कर रही है। सपना का देखिए, सपना बहुत जोर लगा रही है। वेरी ब्यूटीफुल। इसके तो एक ही टेस्ट में अच्छा है, अगर उसको डाउन कर दो तो इसका तो एक्यूरेसी ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। चलो कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज ऐसा ग्राफ आना नहीं था। सपना, सौम्या ने तो बहुत ही कम टेस्ट दिया है। ओवरऑल ठीक ही है, सेटिस्फैक्ट्री। अभी लेटेस्ट टेस्ट में इसका गिरा है, बाकी कंटिन्यूअस राइज था। तो चलो थैंक यू ऑल, आज यहीं तक।
आज की जर्नी, थोड़ा पढ़ाई करिए, मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ बहुत। ये वाला है जो मैं कर रहा था, लिटरेचर, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, अगर तुम थोड़ा हिम्मत है तो पढ़ सको। दिस इज कॉल्ड ओवरव्यू ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रमोटर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मुझे पता है पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है आउट ऑफ बिजी शेड्यूल, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ क्योंकि देर रात तक डिवोट करना ही पड़ता है। तो जस्ट ट्राई, ठीक है। राइट प्रीति, दुर्गा, दुर्गा परफॉर्मेंस आपका देख ले, आपने देखना है। हेलो दुर्गा, आर यू interested to see your performance? I haven't taken one test. So You have not given any test. no. Why? Why you did so? Obviously, you should give all the tests. At least you will learn. देखो इन्होंने 6 टेस्ट दिए and then she is absent. But his score is very good, 75 plus, right? Sometime 80 plus. Very high chance of JRF. This is the JRF indicator. If you are touching this line now, 75. It means almost clear. JRF is clear. No one can stop me. Okay. ठीक है, चलो, बाय बाय बाय, थैंक यू।